उसका भी प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी। 5200 करोड़ रुपए की দমদমের এই মাটিতে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে স্বাগত জানানোর জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা একবার জোরদার করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, मोदी जी स्वागतम। কৌশিকী অমাবস্যার দিন আজ মোদি জিকে স্বাগত জানানোর জন্য জয় মা তারা। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নেবেন ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশের সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী সমীর আইচের আঁকা সত্যজিৎ রায়ের একটি প্রতিকৃতি, রজনীগন্ধার মালা এবং উত্তরীয় দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করে নিচ্ছেন। একবার জোরদার করতালি দিয়ে আপনারা অভিবাদন জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মন্ত্র হচ্ছে লোকাল ফর ভোকাল। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে আনা জুটের তৈরি মা তারার প্রতিকৃতি বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় মোদীজিকে উপহার দেবেন, সঙ্গে উত্তরীয় দিয়ে তাকে বরণ করে নেবেন। আমি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী জিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। শুভেন্দুদা উত্তরীয় পরিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আমরা একবার জোরদার করতালি দেব। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। देश की नेता कैसा है, देश की नेता कैसा है। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, 140 কোটি দেশবাসীর নয়নের মণি, আজকের এই সভার প্রধান বক্তা সম্মানীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে পশ্চিমবঙ্গের গণদেবতা জনতা জনার্দনের পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত বিধায়ক বৃন্দের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধা প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের জনপ্রিয় রাজ্য সভাপতি, রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য মহোদয়, ভারত সরকারের 3 জন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মহোদয়, ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এবং রণবীর সিং জি। মঞ্চে আমাদের সহ প্রভারী অমিত মালভিয়া জি সহ
সাংসদ, বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ, সংগঠনের সমস্ত নেতৃত্বকে আমি সম্মান প্রদর্শন করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকাল থেকে বিহারে একাধিক উন্নয়ন এবং জনসভা করে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাতে 5,500 কোটি টাকার উন্নয়নের ডালি ইতিমধ্যে বাংলার মানুষকে, কলকাতার মানুষকে উপহার দিয়ে এখানে এসেছেন। আমরা তার কথাই শুনব। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। 2019 সাল থেকে 2026 অর্থবর্ষ 25-26 তিনি কলকাতার মেট্রোর জন্য 1,841 কোটি টাকা দিয়ে আজকে শিয়ালদা, হাওড়া, কলকাতা এয়ারপোর্টকে জুড়ে দেওয়ার এক ঐতিহাসিক উন্নয়নের কাজ করলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর এবং আজকে দমদমে এই রাজ্যে প্রায় 20,000 কোটি টাকার কাছাকাছি উন্নয়ন, বিকশিত ভারত, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের জন্য দিলেন। তার জন্য ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলের নেতা 15ই আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন নিয়ে বিশেষ সমীক্ষা হবে আর অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুক্ত ভারতবর্ষ হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে অনুরোধ করব, এই রাজ্যের ভ্রষ্টাচারী তুষ্টিকরণের সরকার, তারা 540 কিলোমিটার বাংলাদেশের বর্ডারে জমি ভারত সরকারকে না দিয়ে অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষকে বরবাদ করছেন। আপনাকে এই অবৈধ ঘুষপেটিয়া অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে হবে। আপনি পারবেন। আপনি 370-35 হাঁটিয়েছেন, আপনি ট্রিপল তালাক হাঁটিয়েছেন, আপনি ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এনেছেন, আপনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আমাদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাম মন্দির দিয়েছেন। ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড আপনাকেই বাঁচাতে হবে। আপনি পারবেন। আমরা বাঙালিরা, পশ্চিমবঙ্গের লোক বাঁচতে চাই, ভালো থাকতে চাই। এই অত্যাচারী মমতা ব্যানার্জির হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমার আর কোনো কথা নেই। আপনারা সবাই মিলে বলুন, দড়ি ধরে মারো টান, দড়ি ধরে মারো টান, দড়ি ধরে মারো টান। হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী আমার পাড়া, তৃণমূল তাড়া আমার পাড়া, আমার পাড়া, আমার পাড়া, আমার পাড়া। তৃণমূলকে তাড়াতে হবে। নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি করে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আজকে কৌশিকী অমাবস্যা। আমি তারাপীঠের মাকে প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে। ধন্যবাদ শুভেন্দুদা, যার বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। তার আগে আমাদের প্রদেশের সভাপতি সুবক্তা শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্যকে তার কথা বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী মঞ্চে উপস্থিত।
কেন্দ্রীয় সরকারের 3 মন্ত্রী আমাদের সহযোগী, বিট্টুজি, ভাই সুকান্ত মজুমদার, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, শ্রী অমিত মালবিয়া, মঞ্চে উপস্থিত আমার সমস্ত সহকর্মী বন্ধুগণ, সুধী নাগরিক বৃন্দ, মা ও বোনেরা, আমরা এক অপার্থিব দৃশ্য, অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলাম দিল্লির মাটি। শুধু আমরা দেখিনি, ওপর থেকে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখছেন, ওপর থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেখছেন, এম.এ. বেবি আর ডেরেক ওব্রায়েন তৃণমূলের পক্ষ থেকে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম একযোগে ভোট দেবে আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে। আরে দিল্লিতে নাটক করছেন, পার্লামেন্টকে অচল করে দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে নতুন ন্যারেটিভ তৈরি করে কোনো লাভ নেই। যদি লড়াই করতে হয় সরাসরি নামুন, রাস্তায় আসুন। আরে প্যার কিয়া তো ডরনা কিয়া। আরো কাছে চলে আসুন, হাতে হাত ধরে বলুন, কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে চাই, নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লড়তে চাই। আমরা তৃণমূল, সিপিএম ভাই ভাই, পথে নামুন। কলকাতার রাস্তায় মিছিল করুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার রাস্তায় মিছিল করুন মোহাম্মদ সালেম। প্রশ্ন করুন এখানে যারা বামপন্থী আছেন, প্রশ্ন করুন বিমান বাবুকে, প্রশ্ন করুন সূর্যকান্ত মিশ্রকে, প্রশ্ন করুন মদন ঘোষকে, কোন রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তারা 34 বছর উপহার দিয়েছেন। আমরা শুধু আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, ভারী শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোনো ভবিষ্যৎ নেই। টুডেজ রিলিজিয়ন ইজ ডেমোক্রেসি and today's politics is development। এই মন্ত্র নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী কাজ করে চলেছেন। আরেকটি বিশেষ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যতদিন বিজেপি থাকবে কোন বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুর কেশাগ্রকে স্পর্শ করতে পারবে না। যতদিন বিজেপি থাকবে কোন দিন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কোন ভারতীয় মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ করতে কেউ পারবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্মশালা নয়, ভারতবর্ষ রোহিঙ্গাদের জায়গা নয়, ভারতবর্ষ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা নয়। যারা মাইনরিটি হ্যাজ আ রাইট টু সেলফ ডিটারমিনেশনের নাম করে এই দেশকে ভাগ করেছিলেন, যারা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আজকে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান, আজকে তাদের সেই র্যাডিকালাইজেশন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে, এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে। আজকে এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আপনারা সংঘবদ্ধ থাকুন। তৃণমূলের যাবার দিন তৈরি হয়ে গেছে। তৃণমূল যাচ্ছে, তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তৃণমূল হারবে, তৃণমূল হারতে পারে, তৃণমূল হারতে চলেছে। তাই 26-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। পৃথিবীর কোন শক্তি তৃণমূলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে পারবে না। ওই দীঘার জগন্নাথ দেবকে সাক্ষী রেখে, দীঘার জগন্নাথ দেব জগন্নাথ ধামকে তো চ্যালেঞ্জ করে পুরী থেকে দীঘায় এনেছেন। জগন্নাথ দেবও খুশি যে আমি এখানে যখন চলে এসেছি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার আশীর্বাদেই বিসর্জন নিশ্চিত বঙ্গোপসাগরে। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। ধন্যবাদ শ্রমিকদা, যার কথা শুনবার জন্য আমরা এতক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। তাকে অভিবাদন জানানোর জন্য দলীয় পতাকা, জাতীয় পতাকা, প্লেকার্ড গুলি আবার একবার তুলব। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। আমরা নরেন্দ্র মোদীকে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। भारत माता की।
भारत माता की। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन। छोटोरा भालोबासा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और काली घाट मंदिर श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर, दमदम बालाजी हनुमान, रामकृष्ण सेवा मंदिर, इन सभी पावन स्थानों में विराजमान देवी देवताओं को मैं आस्था पूर्वक नमन करता हूं। आज कौशकी अमावस्या का पावन दिन भी है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं ऐसे समय में कोलकाता आया हूं जब दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। कुमारटुली में माता दुर्गा की प्रतिमा गढ़ी जा रही है। बड़ा बाजार से पार्क स्ट्रीट तक कोलकाता नए रंग में, नई रौनक के साथ सज रहा है। आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी दोगुनी हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाईवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। मैं दमदम के, कोलकाता के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का कन्विक्शन है, बीजेपी मानती है, बीजेपी की श्रद्धा है, बांग्लार उदय तबेई विकसितो भारतेर जय। इसलिए बीते 11 वर्षों में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की यूपीए सरकारों ने अपने 10 साल में दिया था, उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में
3 गुना बढ़ाया गया है। लेकिन साथियों, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। साथियों, यही स्थिति कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में असम के भी यही हाल थे, त्रिपुरा का भी यही हाल था। लेकिन जब से असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। आज इन राज्यों में हर घर जल यह काम तेजी से चल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है। गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं। बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होनी चाहिए। ये अब तय है। टीएमसी जावे, बीजेपी आसबे। भाइयों बहनों, ये धरती सतीश चंद्र दास गुप्त, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, गोष्ठपाल और हरिनाथ डे ऐसी अनेक विभूतियों की धरती है। इस धरती ने देश को, समाज को समय समय पर नई चेतना दी है। ये धरती पुनर्जागरण का केंद्र रही है। यही वो अमर वाणी गूंजी है जो कहती है, जागो, उठो, नभो जीवोनेर गाने, नभो आलोक, झालाओ प्राणे प्राणे। साथियों, आज पश्चिम बंगाल को सच में नई रोशनी की जरूरत है, सच्चे परिवर्तन की जरूरत है। पश्चिम बंगाल ने आजादी के बाद पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट का लंबा दौर देखा है। इसके बाद 15 साल पहले पश्चिम बंगाल के आप लोगों ने
परिवर्तन का फैसला लिया था। आप लोगों ने मां, माटी, मानुष के नारे पर भरोसा किया था, लेकिन हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए। भर्ती घोटालों से नौजवानों का भविष्य खराब हो गया। बहनों बेटियों पर अत्याचार बढ़ गए। क्राइम और करप्शन ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गए। ये पक्का है कि जब तक बंगाल में टीएमसी की सरकार रहेगी, तब तक बंगाल का विकास अवरुद्ध रहेगा, रुका रहेगा। इसलिए आज बंगाल का जन जन कह रहा है, टीएमसी जाएगी तभी असली बदलाव आएगा। टीएमसी जाबे तबेई আসল পরিবর্তন আসবে। साथियों, 21वीं सदी के 25 साल तो बीत चुके हैं। आने वाले साल देश की तरह ही बंगाल के लिए भी बहुत अहम है। हमें ये समय ऐसे ही नहीं निकलने देना है। इसलिए बंगाल को चाहिए सच्चा परिवर्तन, आशोल परिवर्तन, परिवर्तन जो नारे में नहीं काम में दिखे, परिवर्तन जो उद्योग लगाए, घर के बेटे बेटी को बंगाल में ही नौकरी दे, परिवर्तन जो बेटियों को सुरक्षा दे, मकान और दुकान को जलने से बचाए, परिवर्तन जो किसान को सुविधा दे, किसान को सम्मान दे, फसल का सही दाम दे, परिवर्तन जहां अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार में नहीं जेल में होंगे, ऐसा परिवर्तन जहां सुशासन होगा, गरीब से गरीब भी सम्मान का जीवन जिएगा। और ये सच्चा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही ला सकती है। और इसलिए बंगाल के घर घर में हमें एक बात पहुंचानी है। बंगाल के हर कोने से एक ही आवाज आनी चाहिए, बाजते चाय बीजेपी ताई। यही बंगाल की असली पुकार है, यही बंगाल का भविष्य है। साथियों, ये वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती का 125वां वर्ष है। भाजपा का तो जन्म ही डॉक्टर मुखर्जी के आशीर्वाद से हुआ है।
वे भारत के औद्योगिक विकास के जनक रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी उनको इसका श्रेय नहीं दिया। देश के पहले उद्योग मंत्री के रूप में भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ही बनाई थी। उनकी नीतियों में बंगाल की इस धरती की कुशलता थी, यहां से मिला अनुभव था। अगर हम उस नीति पर चले होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन नीतियों को भुला दिया गया। फिर ऐसा भटकाव हुआ कि हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर हो गए। और मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सैनिक हैं। हम मां भारती के सेवक हैं। जो सपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखे थे, उसके लिए एक सैनिक की तरह हम अपना जीवन खपा रहे हैं। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि दूसरों पर निर्भरता यानी आत्मसम्मान पर चोट, इसी स्थिति से हमें देश को बाहर निकालना है। इसलिए आज देश ने आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र लेकर के नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का फैसला लिया है। मेक इन इंडिया आज एक बड़ी सिद्धि बन रहा है, जिसके लिए हमारा कोलकाता, हमारा बंगाल जाना जाता था। वो गौरवशाली अतीत हमें मिलकर के फिर से लौटाना है। इसलिए आज बंगाल में एक ही गूंज है, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। साथियों, भाजपा जो संकल्प लेती है वो सिद्ध करके दिखाती है। इसका ताजा प्रमाण अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंकियों और आतंक के आकाओं के अड्डों को खंडहर में बदल दिया। हमारी सेनाओं ने आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की आज भी नींद उड़ी हुई है। भारत की इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी शक्ति मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र की रही है। और मुझे गर्व है कि भारत की सेना को ताकत देने में बंगाल के इस इलाके की भूमि का बहुत बड़ा योगदान है। इच्छापुर में गुलामी के कालखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ था,
लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने भारत की ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया था, हमारी सेना को विदेशों पर निर्भर कर दिया था। अब भाजपा सरकार ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊर्जा दी। इसका लाभ यहां की फैक्ट्री को भी मिला है। आज ये फैक्ट्री आधुनिक राइफल और अन्य हथियार बना रही है। इससे यहां छोटे छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर बने हैं। इन कारखानों के कारण दमदम, बैरकपुर क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथियों, इच्छापुर डिफेंस फैक्ट्री सिर्फ एक उदाहरण है। आप यहां 2026 में भाजपा सरकार बनाइए, हम बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएंगे। बंद पड़े कारखाने फिर से खुलेंगे, नया निवेश और नए कारखाने लगेंगे और दमदम फिर से इंडस्ट्रियल हब बनेगा। ये भाजपा का संकल्प है। विकसितो बांग्ला, मोदी गारंटी। साथियों, भाजपा के पास पश्चिम बंगाल के विकास का एक ठोस प्लान है, एक रोडमैप है। लेकिन टीएमसी विकास की दुश्मन है। इसका साक्षी ये दमदम क्षेत्र भी है। ये कोलकाता के सबसे अधिक भीड़ वाले इलाकों में से एक है। यहां की स्थिति क्या है, ये आप आए दिन महसूस करते हैं। देश के ऐसे शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इस मिशन से जुड़ने से भी इनकार कर दिया। लोगों को असुविधा होती रहे, विकास ठप होता रहे, लेकिन टीएमसी का मिशन जैसे तैसे बीजेपी को रोकना है, केंद्र की योजनाओं को रोकना है। मैं बंगाल के भद्रलोक से पूछता हूं, क्या यह तरीका सही है? क्या ऐसी पॉलिटिक्स से पश्चिम बंगाल का भला होगा? इसलिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप यहां भी भाजपा को एक बार अवसर देकर देखिए। साथियों, बंगाल में भाजपा आएगी तो रेल और मेट्रो का तेजी से विस्तार होगा। मैं तो चाहूंगा कि यहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर बने। यहां बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए, नौजवानों को रोजगार मिले। ये तभी होगा जब यहां कानून का राज आएगा, जब यहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जब बंगाल में डबल इंजन की भाजपा सरकार होगी। साथियों, पश्चिम बंगाल के पास इतिहास और संस्कृति की भी अनमोल धरोहर है।
ये बांग्ला विरासत विकसित बंगाल बनाने के अभियान को प्रेरणा देगी। बीजेपी सरकार पूरे गर्व के साथ बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति को सशक्त करने में जुटी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला। साथियों, यहां बनने वाली भाजपा सरकार साथियों, जब भाजपा सरकार बनेगी, हेरिटेज टूरिज्म पर भी बल देने का हमारा प्लान है। साथियों, हम गंगा जी पर जो इनलैंड वाटरवे बना रहे हैं या फिर जो हमारा समंदर है, इसमें क्रूज टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। ऐसी हर संभावना को भाजपा सरकार बनने के बाद तलाशा जाएगा, ताकि पश्चिम बंगाल के नौजवानों को काम के लिए कहीं और जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों, मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आपका एक वोट, एक बार वोट दे दीजिए, ये घुसपैठिए भाग जाने लग जाएंगे जी। साथियों, भारत के पास तो संसाधन सीमित है। हमें अपने नौजवानों को रोजगार देना है, अपने नागरिकों को सुविधाएं देनी है। जो घुसपैठिए हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहे हैं, जो हमारी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों को
हम भारत में नहीं रहने देंगे। इसलिए भारत सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया हुआ है। लेकिन साथियों, मुझे हैरानी है कि टीएमसी, कांग्रेस समेत कुछ इंडी अलायंस के राजनीतिक दल तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं। ये राजनीतिक दल सत्ता की भूख के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ जगह पे तो दिख रहा है उन्होंने घुसपैठियों की शरण ले ली है। साथियों, पश्चिम बंगाल तो सीमावर्ती राज्य है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता। इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। साथियों, पिछले 11 साल से देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। अब इसी दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार लोकसभा में भाजपा सरकार एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन बिल लेकर आई है। मैं बंगाल के लोगों से इस बिल के बारे में विशेष तौर पर बात करूंगा। साथियों, आप भी जानते हैं, हमारे देश में अगर एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी ड्राइवर हो, प्यून हो, सरकार की किसी कैंटीन में काम करता हो, सरकार में कहीं साफ सफाई का काम करता हो, अगर वो कर्मचारी को किसी पुलिस वाले ने जेल में बंद कर दिया तो करीब करीब 50 घंटे में अगर उसको जमानत नहीं मिली और 50 घंटे जेल में रह गया तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी चली जाती है, सस्पेंड हो जाता है। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। और हालत तो देखिए, आजकल ये लोग
इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने ये साक्षात देखा है, बार बार कई बार अनुभव किया है। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। शिक्षक भर्ती का गंभीर घोटाला, घर से नोटों का पहाड़ मिला, लेकिन तब भी वो मंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जनता की हर भावना को यहां निर्ममता से कुचला जाता रहा। इसी तरह टीएमसी के एक और मंत्री पर गरीबों का राशन लूटने का आरोप है। इनकी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ये मंत्री भी जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्होंने भी जनता की भावना की, संविधान की भावना की कोई परवाह नहीं की। साथियों, आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया, ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। इसलिए लोग इतने डरे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटे हैं। साथियों, हर चुनौतियों को परास्त करते हुए पश्चिम बंगाल फिर से भारत के विकास का पावर हाउस बन के रहेगा। इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आप याद रखिए और औरों को भी बताइए, हर गली मोहल्ले में, बंगाल के हर कोने में एक ही मंत्र, एक ही नारा गूंजता रहना चाहिए, बातें चाय, बातें चाय, बीजेपी ताई, बातें चाय, बातें चाय, बातें चाय, बातें चाय, बातें चाय। एक बार फिर आप सभी को इतनी विशाल संख्या में और इतनी ऊर्जा के साथ इस सभा को सफल बनाने के लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोलकाता में, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब पश्चिम बंगाल में भी जो बदलाव है वो होना चाहिए और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसके संस्कृति की बात की जाए, जिसका सामर्थ्य हर कोई जानता है, लेकिन जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं भारत के विकास में उतना योगदान पश्चिम बंगाल का नज़र नहीं आ सकता। और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में केंद्र ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए हर प्रकार की मदद की है, लेकिन वो मदद सही तरीके से नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के सामने बड़ी चुनौती है। खासतौर से पीएम ने जिक्र किया, केंद्र ने जो पैसा भेजा वो बंगाल सरकार लूट लेती है, यानी जो गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जाता है उनको वो नहीं मिल पाता। भारत सरकार जो पैसा भेजती है वो आप पर नहीं टीएमसी कर खर्च होता है। इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि यही वजह है कि गरीब कल्याण की योजनाओं में पश्चिम बंगाल दूसरे जो राज्य हैं उनके मुकाबले पिछड़ा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि आज क्राइम करप्शन टीएमसी सरकार की पहचान बन चुकी है, क्योंकि क्राइम करप्शन महिला सुरक्षा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में रहते हैं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल सुर्खियों में रहता है और यही कहीं ना कहीं अब टीएमसी सरकार की पहचान भी बन चुकी है। भ्रष्टाचार के न जाने कितने ही मामले लगातार सामने आए हैं। पीएम ने कहा कि जब तक टीएमसी की सरकार रहेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता और आवश्यकता है कि जो बदलाव है वो किया जाए। साथ ही पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी जब टीएमसी जाएगी तभी बदलाव संभव है, तभी बदलाव आ सकता है और ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद हर कोई देशवासी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब भी सम्मान से जीवन जिएगा अगर बदलाव आता है, क्योंकि जो आवश्यकताओं की पूर्ति है वो तब हो पाएगी, जो अधिकार है लोगों का वो उनको मिल पाएगा। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन सिर्फ भाजपा ही ला सकती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले साल की अगर बात की जाए तो बंगाल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसको सिद्ध करके दिखाती है। कई उदाहरण पीएम मोदी ने यहाँ पर दिए। उन्होंने कहा कि इसका ताज़ा प्रमाण हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हर किसी ने भारत का सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने सीमा पार आतंकियों और आतंकी आकाओं के अड्डों को खंडहर में तब्दील कर दिया, खंडहर में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास बंगाल के विकास का रोड मैप है, लेकिन टीएमसी विकास के दुश्मन है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी का मिशन भाजपा को रोकना है, केंद्र की योजनाओं को रोकना है, जबकि विकास की बात आती है वहां टीएमसी पीछे नजर आती है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती है घुसपैठ की और घुसपैठियों को देश से भगाना होगा, एक बड़ी चुनौती जिसके लिए समाधान ढूंढा जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका एक वोट घुसपैठियों से पश्चिम बंगाल को मुक्त करवा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए और कितना बदलाव जो है उसके बाद नजर आएगा वो देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल हमें बनाना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में बंद पड़े कारखानों की अगर बात की जाए उनको फिर से खोलना होगा, वो कारखाने फिर से खुलेंगे। इंडस्ट्रियल हब के रूप में एक नई पहचान जो है वो बनती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दमदम फिर से इंडस्ट्रियल हब बनेगा और ये भाजपा का संकल्प है। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने संबोधन के दौरान कही। साथ ही उन्होंने एंटी करप्शन बिल का भी इसमें जिक्र किया। और आपको बता दें, इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। लगातार आपको हम बता रहे थे क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शेखर अय्यर जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शेखर अय्यर जी, DD न्यूज़ पर। जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने अभी प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और सीधे तौर पर एक बड़े बदलाव की प्रधानमंत्री ने यहाँ बात कही और कहा कि तमाम मदद जो योजनाओं के जरिए भेजी जाती है, गरीब कल्याण की बात की जाए, जनहित की बात की जाए, वो तो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भेदभाव करती है, जबकि विकास जो है वो केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में नजर आता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज जो बातें रखी है वो बंगाल के भविष्य को लेकर और वर्तमान को लेकर। और प्रधानमंत्री का ये आज कहना था कि विकसित भारत का जो सपना है उसमें विकसित बंगाल की भी है। और जब तक विकसित बंगाल नहीं बनेगा तब तक भारत की विकसित बनने का जो सपना है उसमें भी बाधाएं हैं जी। इसीलिए उनका अपील था कि इतने साल वो देख चुके हैं कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार, जो माँ माटी मनुष्य कहकर जो सरकार आई है, अभी 3rd टर्म पे चल रही है उसकी। अब लेकिन लोगों के जो तकलीफें हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है वहां पे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने सामने रखा, जो विकास का तो दौर तो बंद ही हो गया। दूसरा, जो जिस तरह भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, पार्टी और सरकार के बीच में कोई फर्क नहीं है। और जितने लोक कल्याण के लिए जो कार्यक्रम है, उसकी जो फंड्स हैं वो कभी लोगों तक पहुंचता नहीं है। और केंद्र के अच्छे अच्छे कार्यक्रम को भी वहां इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है जी। वो जल जीवन मिशन हो, PM आवास योजना हो, या अर्बन रिन्यूअल मिशन हो। हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े शहर हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस सेंट्रल की स्कीम्स को लेकर वहां अगर उसको इंप्लीमेंट करते लोगों को बहुत सुविधा होता, ये भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। फिलहाल शेखर जी, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे उस वक्त की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो जनता है वो उमड़ पड़ी थी उनकी झलक पाने के लिए।
तो देखिए आपने ये तस्वीरें किस तरीके से जनता जो है उसमें उत्साह था प्रधानमंत्री को देखने का, उनकी झलक पाने के लिए बहुत स्वागत उनका यहाँ पर किया गया। और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, एक सवाल आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगा, बात हम पश्चिम बंगाल की करें या बिहार की बात की जाए, विकास की रफ्तार अब इन दोनों राज्यों में जिस तरीके से नजर आ रही है, क्या ये रफ्तार भारत को विकसित बनाने में कितनी मददगार होगी? बंगाल और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आबादी भी ज्यादा है, समस्या भी ज्यादा है। लेकिन बिहार में आपने देखा लगातार जब एनडीए सरकार आई है, जिस तरह लोक कल्याण के लिए जो कार्यक्रम जो शुरू किए गए, कई कार्यक्रम, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन, बनिया ये बाढ़ को रोकने के लिए जो भी कदम लिए गए हों, और अति जो पिछड़े लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी लिए हो जी। लेकिन बंगाल में आप देखिए जो हो रहा है, बंगाल में एक तो अपराधीकरण, राजनीति में जो अपराधीकरण है, और उसका पूरा ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है वहां पे जिस तरह करप्शन हर क्षेत्र में, उसके अलावा जो महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी बीच बीच में जो घटनाएं होती रहती है, बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे मतलब लगता है कि बंगाल में कोई परिवर्तन ही नहीं आ सकता। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री का एक ही ये था, देखिए जब भारत 1947 से लेकर कई सालों कांग्रेस सरकार रही वहां, उसके बाद वामपंथियों आए, वामपंथी के बाद ममता बनर्जी की सरकार 2011 में, लेकिन स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब होती गई है। और आज ऐसी स्थिति है वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वहां के स्थानीय जो युवा हैं उनके लिए नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता, और सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, जो घुसपैठियों की जो समस्या है, इस पर प्रधानमंत्री ने दृष्टि आकर्षण किया और कहा किस तरह बंगाल को ये जो घुसपैठ के कारण से उनकी आर्थिक जो अवस्था है उस पर कैसे प्रश्न। बिल्कुल, तमाम ये जो बड़ी चुनौती है इनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और इन समस्याओं का समाधान जो है वो भी उनके पास है, इस बात का भी जिक्र किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखर जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाना आपने, बात की जाए बिहार की या बंगाल की, अब यहाँ पर विकास की जो रफ्तार है वो नजर आ रही है और इस रफ्तार को और गति दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।